We requested the invitees to submit the questions and suggestions online. So we received uh, many questions and we have grouped them into 10 groups. Now I'll be presenting the questions one by one. I will also announce the names of the questioners. If you are in the audience, please raise a moment and then we can, Sir Sangi Chalak ji will answer the question. We move to the Q&A program. The first group about RSS organization policies, Vividha Kshetra, women. On these topics, we received questions from Tejdeep Kaur Menon, Deepa Deepadruchi Shanka, Karanam Parnita. ये सबसे प्रश्न आए. How is RSS ensuring proper historical recognition of Sikh gurus and Sikh contributions in defending Bharat over centuries? Why has RSS leadership traditionally remained Brahmin centric and what is the scope of Bahujan Dalit representation? How can women led cooperative societies, including transgender livelihoods initiatives, formally associate with RSS work? What future actions will RSS take to further strengthen the Hindu way of life? How can Vichar Parivar expand youth and women participation, especially among social influencers and young mothers? And last one, are women involved in decision making at higher levels of RSS inspired bodies? The last two questions I have already answered. So with this initiative of Pancha Parivartan, all the desired things will happen. Youth and women participation, because these 5 initiatives, they are accepted everywhere and accepted by everybody. They are addressing our real concerns of today. So everybody accepts it. And youth and women are specially interested and become active about it. And this will further strengthen the Hindu way of life. Regarding the Sikh gurus and Sikh contributions in defending Bharat over centuries, it is our tradition. We are projecting that already. Now the Guru Tegh Bahadur Ji, Shahidi Divas celebrations are going on. We had very big programs in Delhi, in Nagpur, in Nanded, and one is to take place in Mumbai also. So, wherein lakhs of people could assemble. All the Sikh institutions were taken in confidence and cooperative effort was there, and we were successful to project the message across the society. So everybody came. That is the way we work. Whatever is going on, we strengthen it. Whatever useful aid we can provide, we do it. And that is from the beginning. Actually, in Maharashtra, the history of all the struggles Sikh gurus had, that was depicted in a pictorial presentation that was prepared first by our former Pranta Pracharak of Punjab, Raja Bhau Paturkar. And after coming back, retiring from Punjab, he used to go around our training camps and used to recite the Sikh history. श्री गुरुओं का बलिदान कैसा कैसा धर्म हो गया ये सब बताते थे. So this type of dissemination of the glory of our ancestors, regardless of their worship, etc., we are doing it from the beginning. Brahmin-centric leadership was never there. In first thing in Sangha, we don't know caste. Actually, we are a team of 41 people at the top level, Akhil Bharatiya Adhikaris. I don't know to what caste everyone belongs. And we are working together for last 40 years. This consideration is not at all there. When you tell me that that fellow is this, I know. I was made Sarkarewa and our Sureshji Soni,
At the same time, he was appointed as Prachar Pramukh. A media another day gave headline that Bhagwat Brahmin became Sarkaryawaha and Soni from OBC was given representation as Prachar Pramukh. So next day I asked Soni ji, do you belong to the OBC? He just like this, he smiled. I still don't know to which group he belongs. We don't think in those terms. But Sangha started in Mahal, Nagpur. Even today, Mahal is a predominant Brahmin Vasti. So first Shakha was started there. First workers were Brahmin. All of them were Brahmin. And so for a period, all leadership is Brahmin. From all India level to local level. That was the picture. But slowly we expanded. We went to, geographically we expanded. So everybody was taken into loop. And now you will find that almost representation is whole of the Hindu society. SC, ST, OBC, all type of Karyakartas are functioning at each level. So, the number of Brahmins were initially there due to these practical reasons. It was not Brahmin centrism. And therefore, what is the scope of Bahujan Dalit representation? We don't work on representation. Those who work, regardless of their caste, etc., they are given responsibilities. Another thing, in Sangha, there is no race to catch a post. It is on the contrary, we have to run after Karyakartas to make them accept the greater responsibilities. Because you don't get anything here. Now that Sangha is so much grown and accepted, there is a little status in being something of Sangha. Otherwise, that also was not there. So our Karyakarta says, no, don't give post to me, I will work, give post to him. Everybody says that. So there is no, such type of race doesn't exist in Sangha atmosphere. So this question, you have to understand what Sangha is. Then it will get answered automatically. Then everywhere, wherever there is good work and there are Swayamsevaks, due help will be provided. Women-led cooperatives, etc., any work there. प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश के लिए जो चल रहा है, उसमें स्वयंसेवकों की जितनी शक्ति है, उसके अनुसार वो मदद रूप होंगे. उसके लिए you have to contact the local कार्यकर्तास. Nothing will happen from the top in Sangha. It is not a top-down organization, it is down to top. तो हमारा लोकल कार्यकर्ता आपके संपर्क में है, तो सब कुछ, सब मदद हो सकती है, सब कोऑपरेशन चल सकता है, उतना ही करना. ट्रांसजेंडर्स में भी और स्वयंसेवक पहुंचे हैं, उनका काम चल रहा है, उनके लिए भी प्रयास स्वयंसेवक कर रहे हैं. Next group of questions on the topic Hindutva, religion, dharma and Sanskriti. Questioners Pulikonda Subbachari, Major General N. Srinivas Rao. Questions are, if Hindutva is a way of life, why is not equally applied to other religions in national discourse? What strategies exist to communicate Hindutva as cultural civilization rather than a religion? How should youth understand dharma and Sanskriti so Hindutva is not misrepresented as sectarian? All of these have been answered already. So when I say there are 4 kinds of Hindus only, it is application to other religions also. Hindu is not a religion. There are Hindu religions. All the ideologies, thought processes, religions, etc., those have taken birth in Bharat soil and tradition. They are all Hindu because they accept and respect all the diversity while remaining fast on their own faith. That is what Hindu is.
So whenever we talk to Muslims and Christians, we appeal the same way. Okay, your worship is different. But by a nation, by society, by your tradition, by your ancestors, by your Matrubhumi, you are Hindus. First they were not hearing, but now they say, okay, don't call us Hindu, call us Hindavi or Bharatiya. He'll say, no, we'll call you Hindu. You don't call yourself Hindu, you call yourself Bharatiya, Hindavi. Keep in mind, both are synonyms. यहां तक गाड़ी आई है, आगे भी जाएगी. ऐसा ही ये जब हम बोलते हैं, आप विजयदशमी के भाषण देखिए मेरे, वो मेरे भाषण नहीं, वो संघ के भाषण है. संघ कलेक्टिवली वो तय करता है क्या क्या बोलना है. उसमें ये बात आई है कि रिलीजन के ऊपर पूजा पाती, खान पान, कर्मकांड, इन सबसे अलग जो मैंने कहा, सत्य करुणा शुचिता तपस के बेस पर सबको साथ लेकर सबकी उन्नति एक साथ में हो, मेरे उन्नति में सबकी उन्नति हो, ऐसा चलना, ये हिंदुत्व है. ये विषय बार बार आता है. और ऐसे ही धर्म को हमको समझना चाहिए. संस्कृति, धर्म को रिलीजन नहीं कहना और संस्कृति को कल्चर नहीं करना. कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन कल्ट, संस्कृति इज नॉट कल्ट. सिमिलर व्यापक एक्शन होती है लेकिन कल्ट नहीं. जैसे भारत में, अखंड भारत में, अखंड भारत के क्षेत्र में आज भी मार्केट में जाकर आप 100 आम खरीदेंगे तो आपको 5 ऊपर से मिलेंगे. इसके लिए भारत की हर भाषा में शब्द है. मराठी में पासंग कहते हैं, कहीं कहीं पस्तूरी कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, कोसुरु. अब कोसुरु इज प्रिवेलेंट एवरीवेयर इन अखंड भारत, अफगानिस्तान टू बर्मा. No religious scripture mentions this, no pravachan contains this, but it is there, tradition. Even by some forgetfulness, I should not give less. I am taking money, I should give more. ये जो स्वभाव है वो संस्कृति है. और ये ट्रेडिशन, हमारे संस्कार ये सब बताते हैं. दान करना है, घर के सामने मांगने वाला आया तो खाली हाथ नहीं भेजना. 1 पैसा दो, मुट्ठी भर चावल दो, चलेगा. और देने वाला कौन होता है? घर का छोटा बच्चा होता है. तो उसको पता चलता है हमारे घर में जो रखा है केवल हमारे लिए नहीं है, कोई जरूरतमंद आता है तो कौन है क्या है विचार नहीं करना, उसको देना. ये स्वभाव में आता है. ये जो एक्शंस है, दे फॉर्म द हैबिट्स, habits form the nature, natures form the character, that character is संस्कृति. तो वो संस्कृति है, वो धर्म है, ये हमने समझना. और जैसा मैंने कहा, कुटुंब प्रबोधन, कहीं जाते बात करते लोगों में, ये सब बोलते रहना और करते रहना, तो इसका अपने आप प्रोपगेशन होता है. Third topic, caste issues, social harmony, internal social challenges. Question is Shri B.K. Shastri, Manohar Rao Bompalli, Swaranjit Sen, Mamidi Narayan, Srinivas Reddy C. Questions are: what national measures are planned to stop drug flow and protect youth, especially in Punjab? What is the correct understanding of pride versus being proud regarding birth, caste, or homeland? Why does caste persist socially? Example, marriage alliances. And can RSS lead in caste eradication? What is RSS stand on abolition of caste and the issues of Dalit conversion due to untouchability? How can political parties be discouraged from caste-based vote strategies? Can social harmony activities alone remove caste inequality, or are stronger policies needed? Should caste-based benefits have generational caps? And what about poor upper caste citizens excluded from welfare? How does RSS respond to honor killings linked to intercaste marriages? So, Sangha view about this
there should be no discrimination. All that we have which leads to discrimination should go out lock, stock and barrel. So we don't believe in caste, we don't recognize caste, and we believe that caste is going away. Let it go away properly. That is what we have to do. Caste is there now because only of economic consideration as well as political consideration. There is no real caste now. Caste is one work, one caste. But now it is not the condition. Everyone can do everything. So, you have to just say, I don't want caste, I don't believe in caste, I will not see caste. If whole of the society changes like that, without any consideration of caste and creed, they behave with each other as sons of Bharat Mata, politicians will automatically change. Unless that happens, nobody can eradicate caste from politics. Because if considering caste we get votes, politicians' first concern is votes. So even those who do not believe in caste, when they go to politics, they have to consider where to contest the election, how many numbers of my caste are there. All these things they have to consider. Caste is there, caste feeling is there in the society, therefore it is in politics. Remove that feeling of discrimination. Give the outlook of equality, politics will be automatically improved. And RSS is doing it. RSS is doing it silently. RSS approach is no eradication of caste. Just draw a longer line. We don't talk of caste in Sangha. We talk of whole society, Hindu. So that is where I told you, we don't know. We are working together for years, but we don't know about each other's castes. And if someone does survey how many intercaste marriages had happened and who did it, so you'll find majority of those intercaste marriages are in Swayamsevak families. So it should go out lock, stock and barrel. Being proud, pride is not a good word. We should rejoice in, not birth, caste or homeland. Homeland is a matter of rejoicing. We are proud of Bharat. Okay. But we should really rejoice in Dharma. Human beings behaving like human beings. Human beings not behaving like animals. That is a matter of rejoicing and being proud of. We are proud of our country not only due to its geography, not only due to its beauty, but also due to its tradition of giving to the world. And we have kept intact that tradition. Even now, even our enemies we go and help. Those who do not behave properly with us, those also, in the times of some calamity, we help them. At our own expense, we are serving the world. And our honesty is believed all over in the world. So these are the points wherein we should rejoice. जन्म तो अपने हाथ में नहीं ना, कहीं भी हो सकता है, तो उसका अभिमान क्या करना। भारत हमारा देश है, हम सबको मिलकर उसको बड़ा करना है और उस देश को, सारे विश्व को एक बैलेंस देना है, इसलिए उसका अभिमान जरूर चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन बर्थ कास्ट इसकी कोई प्राइड की जरूरत नहीं। ओके, इट इज देयर, बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर धार्मिक्स, सत्य करुणा शुचिता तपस, एंड दिस इज आवर ट्रेडिशन। इसलिए भारतवर्ष के उस तेज में हमको ग्लोरी महसूस करनी चाहिए, प्राइड महसूस करना चाहिए। हो गया, केवल एक बात है ड्रग्स की। तो ड्रग्स के बारे में स्वयंसेवक अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, कोई सेंट्रल योजना अभी नहीं है। एक विचार हमारा चल रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ, निर्णय होगा तो फिर आप मानना कि हम करेंगे।
लेकिन अभी विचार ऐसा चल रहा है कि सब जगह ऐसा जो काम चल रहा है, स्वयं सेवक कर रहे, हितैषी कर रहे, और भी लोग कर रहे, तो उनको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री बना के एक कंट्री वाइड एफर्ट इसके बारे में तैयार हो। कुछ काम है जो सरकार को करने पड़ेंगे, उसके लिए वहां बात करने वाले लोग होंगे, परंतु जो हम कर सकते हैं, क्यों ड्रग्स के दूर रहने के लिए विवेक चाहिए, और ड्रग्स जो लेता है वो लोनली होता है तब ड्रग्स लेता है, आदत उसमें से लगती है। तो हमारे परिवार में और समाज में लोनलीनेस का अनुभव किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा। फिर काउंसलिंग है, रिहेबिलिटेशन है और प्रबोधन है, ये सब करना पड़ेगा। इतनी बातें तो समाज के अपने हाथ में है, वो करने वाले लोग भी है और स्वयंसेवक भी कर रहे हैं, पंजाब से लेकर उड़ीसा तक सर्व जगह, यानी कच्छ से आसाम तक या कन्याकुमारी से हिमालय तक, ऐसा मैं कहूंगा पूरे देश में कर रहे हैं। उनको सबको, और ऐसा करने वाले और हितैषियों को, और भी कुछ सज्जन लोग हैं कर रहे, उनको सबको इकट्ठा करके ये प्रयास स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना, कैसे करना, इसका विचार चल रहा है। जब होगा तब बताऊंगा। Next section, Bharat Awakening Hindu Society, Role of Youth. On this, the question is Manohar Rao Bompalli, Swaranjit Sen. How can youth participation be increased in nation building rooted in Hindu societal values? And second one is the term Hindu society inclusive of all citizens or exclusive of non-Hindus? So, the term Hindu society, ये तो मैंने बताया, it is never, Hindu means inclusive. So, on the part of Hindu society, Hindu Dharma, this question is not there at all. It is on the part of others. We are inclusive. Are you ready to be included? There is a fear that if we go with Hindu society, we will lose our Christianity, we will lose our Islam. That has never happened in history. On the contrary, in other regions where there are no Hindus and others are prevalent, this crisis is there. But once Islam came as aggressor, we fought, everything happened, but Muslims are still there and will be. Missionaries came, they converted. We are still fighting conversion. But those who are Christians are there and will be. We don't have any enmity towards religions. We don't want anti-nationals. We don't want people to be cut from their roots. So we are inclusive. This should be understood. And when we say, why your religion is Islam, okay, your religion Christian, but you are a Bharatiya, you are a descendant of Hindu Purvajas, and your Sanskriti is Hindu, it is not European or Middle Eastern. That should be accepted. That is our appeal. We are inclusive. Question lies with the others. And this expression of Hindutva has got a great appeal in youth. So we are getting youth. Each year, about 2.5 lakhs new persons, youth, age 20-21, they enter Sangha. That is happening. And that is because this approach. People are fed up with the communal tensions. People are also fed up with the anti-national tendencies that grow under the aegis of such communal concepts. And only outgo is to say that yes, we are Hindus, Hindu is our ethos, and Hindu is inclusive. That is what we are telling people. Yeah, fifth topic, Swadeshi Chintan, Economy and Lifestyle. The questioners are BK Shastri, Sushma P, Raghuveer Ji. What is RSS position on genetically modified crops, beneficial or harmful to economy and society? Second question, what policy direction is RSS working on to strengthen Swadeshi lifestyle against growing foreign cultural influences? So I told you RSS runs only shakhas and creates Swayamsevak. Swayamsevaks do all these things.
So there is Swadeshi Jagran Mancha striving for this. It is continuously working since the days of World Trade Organization. So it is taking so many initiatives in these directions. It is collecting the Swadeshi Karigars, having their sammelans, etc., promoting the Swadeshi Karigari. All these things, they are going on. Each year they give us a list. What is Swadeshi? What is Videshi? And it is distributed in quite an extensive manner. So, keeping alive the discussion and mentality of Swadeshi has been paid attention to by Swadeshi Jagran Manch. And Swayamsevaks help them explicitly everywhere. About genetically modified crops, there are so many objections and valid objections. So, first thing, we don't copy. Because another thing, our approach toward agriculture is also different. Why America is there in agriculture? First, they want to eat and they want a profit. Profitable agriculture. For that, if we have to exploit the nature, they will do. Our approach is not like that. Our kisan, he does खेती. खेती करना मेरा धर्म है, ऐसा बोलते हैं. दैट इज व्हाई व्हेन हम खेती नहीं करेंगे ऐसा जब एक मूवमेंट हुआ था, किसान संघ ने उसका विरोध किया था. मैंने कॉन्वर्सेशन सुना, पिताजी अच्छे प्रगत किसान और 2 लड़के जवान, वो भी खेती में, अच्छी खेती थी इसलिए. तो वो डिस्कस कर रहे थे दोनों भाई कि हम ऐसा ऐसा वो नया है उसको लाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने को लाभ होगा. तो पिताजी ने बुलाया कि ये नहीं करना है क्योंकि वो बातें पर्यावरण को बिगाड़े. हम खेती खुद खाने के लिए नहीं करते, खेती करना हमारा धर्म है, दुनिया को खिलाते हैं. ये हमारा अप्रोच है. बेसिकली अप्रोच इज डिफरेंट. विथ दिस अप्रोच वी शुड अप्रोच ऑल द टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर. तो ये जेनेटिकल मॉनिटरिंग है, उसके और क्या क्या परिणाम होते हैं. कंपैरेटिवली नया टेक्निक है. फर्टिलाइजर का ऐसा ही किया हमने. फर्टिलाइजर से एकदम उत्पादन बढ़ता है, डालो. तो हमको क्या मिला? किसान गरीब है, कैंसर ट्रेन चल रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए कल. ये सावधानी रखकर वी हैव टू अप्रोच. एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी डोंट हैव एनी अपोजिशन, बट वेदर इट इज एप्लीकेबल, वेदर इट इज वेल टेस्टेड. हमारा एग्रीकल्चर टेक्निक 10,000 years टेस्टेड टेक्निक है. वो पर्यावरण की खराबी नहीं करता, वो किसान को अपना मालिक बनाता है. तो कुछ भी बाहर से लेना है तो परीक्षा करके लेना. बिकॉज वेस्टर्न थिंग्स आर डूइंग इट एंड अपरेंटली दे आर बेनिफिटेड बाय इट. वो ऐसा नहीं करना, क्योंकि फर्टिलाइजर की खेती उन्होंने लाई, अब वो फर्टिलाइजर की खेती का विरोध कर रहे हैं. तो एक आदमी ने रेगिस्तान में जा रहा था, तो कहीं थोड़ा पानी के खोज में दूर जाना था, तो अपना सामान अंदर डाल दिया, सैंड के अंदर बरी कर दिया और जाके पानी पी के आया. फिर खोज रहा है, एक काफला जा रहा. क्या खोज रहे हो? बोले मैंने मेरी थैली वगैरह जमीन के नीचे रखा था. कहाँ रखा था? तो वही खोज रहा हूँ. फिर कुछ साइन देखा होगा ना? तो बोले देखा था, ऊपर एक ऊंट के आकार का बादल था, उसके नीचे मैंने किया था. अब ऊंट के आकार का बादल आप देखोगे तो वो तो बदलेगा और इधर उधर जाएगा, आपको अपनी थैली नहीं मिलेगी. ये ध्यान में रखकर इन सबको डील करना चाहिए, ये हमारा मत है. किसान संघ इस बात को देखता है. Next topic, Hindutva worldview on environment. Questioners, Pulikota Subbachari, Rajashekar ji. How does RSS view environmental justice when resources are unequally enjoyed across social groups? How can Hindutva ecological worldview on biodiversity and sustainability be more widely propagated? हमको अपने देश में करके दिखाना होगा. थियोरेटिकली होल वर्ल्ड इज कमिंग टू दिस. गीता में है ना,
एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हमें, वो श्लोक है ना पूरा। अन्नात् भवति पर्जन्यात्, पर्जन्यात् पर्जन्यात् अन्न संभवा वगैरह वगैरह, वो साइकिल बता के वो कहते हैं कि ये जो चक्र मैंने प्रवर्तित किया है इसका अनुवर्तन नहीं करने से पाप लगता है और घोर यातना होती है। गीता में बहुत अच्छा वर्णन है पर्यावरण के अपने दृष्टिकोण का, 2 जगह है। वो हमारा जो दृष्टिकोण है पहले से, वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ नेचर, वी आर पार्ट ऑफ नेचर, पहली बात। एंड आवर लाइफ कैन गो ऑन ओनली व्हेन अदर लाइव्स कैन गो ऑन। नेचर डिस्ट्रॉय हो तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसलिए करने में संयम चाहिए। हमको चाहिए लेकिन हम रोकेंगे। घर में मीठा लाया है, बच्चे ज्यादा खाते हैं तो जानबूझकर बड़े लोग कम खाते, बच्चों को ज्यादा मिले इसलिए। उनको भी इच्छा है लेकिन दे एक्सर्ट संयम। इस संयम के साथ सृष्टि को देखना, सृष्टि को अपने उपभोग का साधन के नाते नहीं देखना, मित्र के नाते देखना, ताकि सृष्टि भी हमको मित्र मानकर हमसे व्यवहार करे। ये सारा अपने यहां जो विचार है उस पर दुनिया धीरे धीरे आ रही, लेकिन आज के दिन में ये कैसे करना, इसका मॉडल हमको खड़ा करना पड़ेगा। विकास और पर्यावरण साथ चल सकते हैं, विकास और प्रकृति साथ चल सकती है, ये हमको करके दिखाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिम के तरीकों का अंधानुकरण नहीं करना। जो अच्छा है वो जरूर लेना, लेते समय वी हैव टू अडेप्ट इट टू आवर सिचुएशन, आवर ट्रेडिशन, आवर इंस्पिरेशन। ये करना पड़ेगा, तो उससे वो ग्लोबल हो जाएगा, लोग हमारा अनुकरण करेंगे। और सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट वैसे 2 बातें हैं, लेकिन प्रदूषण का एक कारण वो भी है। तो उसके लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि विकास जो होता है उस विकास में पुअर एंड रिच इनका डिस्टेंस कम रहना चाहिए, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति परिणाम करती है। तो हम एक डेवलप्ड सोसाइटी, लेकिन व्हाट सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटी अभी उधर तो ऐसा है जो विकास का मॉडल उनका है, उसमें ये गैप बढ़ती है। हमको चिंता करनी पड़ेगी, हमको अपना एक विकास का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें विकास तो होता है लेकिन गैप नहीं बढ़ती। सेकेंडली, वी हैव टू टेक सीरियस नोट ऑफ दिस सोशल अनइक्वालिटी इन स्पिरिट। जो व्यवस्था में होता है वो सब अपने भाव का नतीजा है। इसलिए अंदर से हम लोग अगर सर्वम खलुदम ब्रह्मम मानने वाले हैं, एक ही आत्मा सब में ऐसा मानते हैं, तो भेदभाव की अपनी दृष्टि भी खत्म होनी चाहिए। ये बुरी आदत 2000 वर्ष पुरानी है, इसको निकालने के अनेक प्रयास हो रहे, धीरे धीरे जाएगी, परंतु हमको एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। वो सर्वोपरि है, ऐसा चलना पड़ेगा, और महाजनों को इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस इसके उदाहरण रखने पड़ेंगे, तब होगा। हो रहा है, उस तरफ धीरे धीरे गाड़ी जा रही। आई एम होपफुल अबाउट इट। Education, Sanskar, role of family. Question is Sri V.V. Lakshminarayan ji, Vinod Agarwal. How can joint family structures be strengthened amid urbanization? What is RSS role in improving Sanskar and reinforcing family-based cultural values? Why is primary education in regional language not being effectively implemented? And what is the way forward? तो इंप्रूविंग संस्कार, रीइंफोर्सिंग फैमिली बेस्ड कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताया। हमको अपने घर में बैठकर ये सब करना पड़ेगा, सिलेबस में आना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। वो आता है थोड़ा थोड़ा, एनईपी में आ रहा है, लेकिन केवल उससे काम नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक में है वो नहीं पढ़ते। सीखने वाले जो दिखता है वो सीखते। वो पुस्तक में पढ़ेंगे अपनी ऐसी सनातन वैल्यूज है, सत्य वगैरह वगैरह वगैरह,
और घर में आकर पिताजी को किसी से असत्य बोलते हुए सुनेंगे, तो उनको ये वो दे विल गेट द एजुकेशन दैट द थिंग्स इन बुक्स आर थिंग्स इन बुक्स, प्रैक्टिकलिटी इट इज समथिंग एल्स। इसलिए समाज में जो महाजन है उनका आचरण, उनकी बात, बोलना चलना, ये सब बोल चाल चलन, और घर के एल्डर्स का बोल चाल चलन और संवाद से इसकी जानकारी देते रहना, ये मस्ट है, तब ये सारी बातें ठीक होगी। अब जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स में दो बातें हैं, जॉइंट फैमिली का स्पिरिट है, जॉइंट फैमिली का लेटर है। लेटर हमको पता है, सब भाई एक साथ रहते हैं, 50, 70, 200 की फैमिली देखी है हमने, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अभी के स्थिति में कठिन है। तो लेटर तो बदलता है, स्पिरिट वही रहना चाहिए। तो मुंबई में हमारे विमल केडिया जी है, 4 भाई है, मुंबई में अलग अलग जगह रहते। मुंबई में 70 लोगों की फैमिली रहने के लिए जगह, ये लगभग इम्पॉसिबल है अभी। लेकिन वो हर महीने किसी एक भाई के घर बारी बारी से जाते हैं, वहां पर भजन भोजन गपशप खाना पीना एक दूसरे की जानकारी, ये सब उनका हर महीने चलता है। सूरत में एक परिवार में गया था, तो अलग अलग घर बने हैं, लेकिन वो अच्छा है, जमीन खरीद के एक ही परिसर में 5 भाइयों के 5 बंगले हैं और हर महीने इकट्ठा आते हैं, 70 लोग रहते हैं। मैं गया उस दिन, आए थे, मैंने कहा अच्छा है आपकी बड़ी फैमिली 70 लोगों की है। बोल रही हमारी फैमिली इससे बड़ी है, बाहर गाँव भी लोग रहते हैं, अभी हम यहाँ 5 लोग हैं तो महीने में इकट्ठा आते हैं, सब लोग साल में एक बार आते हैं। उस समय अभी की संख्या 287 है और बढ़ेंगे। एक परिवार सम्मेलन में मैं गया था, 550 लोग थे, साल में एक बार करते हैं। तो साथ रहना संभव नहीं, अलग अलग रहना पड़ता है, फिर भी हम एकत्र है, हमारा कुटुंब है, ये जानकारी यंग जनरेशन को हो, हमको भी ध्यान में रहे। इसलिए ऐसा बार बार मिलना, ये एक लेटर हो सकता है, ऐसी अनेक बातें हो सकती है, सोचिए और करिए। प्राइमरी एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो उसकी डिमांड चाहिए ना, डिमांड कहां है? आग्रह से हमारे बच्चों को हम रीजनल लैंग्वेज मीडियम में भेजेंगे, मातृभाषा मीडियम में पढ़ाएंगे, ऐसा करने वाले गार्जियंस चाहिए। आज तो हर आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेज रहा है, वहां एडमिशन मिल गई तो पितरों को स्वर्ग मिल गया, ऐसा आनंद उसको होता है। बल्कि फैक्ट इज ऑल द टॉपर्स ऑफ आवर कंट्री, दे आर ऑल अप टू मैट्रिक और अप टू 8th क्लास दे हैव टेकन एजुकेशन इन देयर ओन मातृभाषा। टॉपर्स में मातृभाषा लर्नर्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। विश्व में सबसे अच्छा फिनलैंड में है एजुकेशन। फिनलैंड एक छोटा कंट्री है, छोटा नहीं बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत छोटी है, तो आसपास के यूरोप के देशों से सबको स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 8th क्लास तक मातृभाषा मीडियम है। ये बाहर देश से कोई आता है तो उसको उनके भाषा में सिखाने की व्यवस्था करते हो। एक पूरी यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, वहीं से टीचर अपॉइंट होते हैं। तो उनका आग्रह है मातृभाषा मीडियम चाहिए। 8वीं के पास कौन से मीडियम में पढ़ना वो चॉइस स्टूडेंट करता है। ही मे ऑप्ट फॉर इंग्लिश, ही मे ऑप्ट फॉर एनी अदर लैंग्वेज, ही मे ऑप्ट फॉर हिज ओन मदर टंग, वो प्रोवाइड करते हैं उसको। तो मातृभाषा में शिक्षण लेने का बहुत महत्व है। शिक्षा शास्त्र कहता है कि दैट इज द बेस्ट वे, लेकिन हमारे लोग वो तो भाग रहे इंग्लिश मीडियम के पीछे। तो जब ये ठीक होगा तो अपने आप भाषाई विद्यालय अच्छे बनेंगे। अभी तो यहां विद्या भारती के तेलुगु विद्यालय थे, अब उनको बंद करने पड़ रहे हैं ना। हाँ, तो ये कोई नियम का प्रश्न नहीं है, लोगों के आचरण का प्रश्न है। उनका मन ठीक करना पड़ेगा, वहां एडमिशन लेनी पड़ेगी। Next topic, national security, demographic challenges. Questioners Tejdeep Kaur Menon, Major General N. Srinivas Rao,
how can 6 pilgrimage sites in Pakistan, Nankana Sahib, Panja Sahib, be made accessible to Indian Sikhs? How can Punjab's declining female population, drug abuse, and immigration be addressed to protect Sikh community survival? How do demographic imbalances impact national security, and what role can youth and veterans play constructively? तो सिख साइट्स में जाना, ननकाना साहब तो ओपन हुआ था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो कर दिया उसके चलते बंद करना पड़ा, क्योंकि आने जाने वाले अपने बंधु तो जाएंगे, पंजाब से सिख जाएंगे, वहां भी कुछ सिख है वो आएंगे, लेकिन उनके साथ और कौन को आएंगे वो पता नहीं, उनको भी पता नहीं। तो सिक्योरिटी की दृष्टि से भी देखना पड़ता है इन सब बातों को। तो ये प्रश्न सरकार का है, और आप सरकार में अपील देंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार को जो निर्णय करना है वो इन सब कंसर्न्स को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। अगर ये सीमावर्ती अपने पड़ोसियों के साथ के टेंशन्स बंद हो गए और उन्होंने अपनी एग्रेसिव प्रवृत्ति छोड़ दी, भारत का द्वेष छोड़ दिया, तो हम आसानी से ये सब बातें कर सकते हैं, और करने का स्वभाव भारत का है। परंतु ये न होने के कारण कठिनाई आ रही, फिर भी सरकार को करते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए, और आप कहते रहेंगे तो हम भी लगे रहेंगे। बाकी पंजाब की डिक्लाइनिंग फीमेल पॉपुलेशन, ड्रग अब्यूज, इमिग्रेशन, ये एड्रेस करने के लिए पंजाब के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। यहां बैठ के हम कैसा करेंगे भाई? तो इसकी चिंता वहां होनी चाहिए, और वहां होनी चाहिए इसलिए वहां के स्वयंसेवक प्रयास कर रहे हैं। ड्रग्स में वहां भी काम चल रहा है, जो मैंने कहा देश भर में स्वयंसेवक कर रहे हैं, तो प्रोमिनेंटली पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब के और अन्य लोगों को भी साथ में लेकर कर रहे हैं। ऐसे ही महिलाओं के जागरण का एक देश भर व्यापक प्रयत्न चलता है, महिला समन्वय के नाम से, उसका काम पंजाब में भी है और बढ़ रहा है। अब डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का इम्पैक्ट क्या है ये आपको बताने की जरूरत है क्या? हमने देखा है और देख रहे हैं। 3 कारण है इम्बैलेंस के। पहला कन्वर्शन है, तो कन्वर्शन होने नहीं देना और रिकन्वर्शन करना, ये इसका उपाय है। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन है, तो डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो डिलीट और डिपोर्ट शासन प्रशासन का काम है, अपनी तरीके से वो कर रहे हैं। हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं घुसपैठिया कौन है, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस में कि हमको लगता है विदेशी नागरिक है, आप देख लीजिए और वॉच रखिए। और हम एक काम कर सकते हैं, विदेशी को रोजगार हम नहीं देंगे, स्वदेशी को देंगे। ये अगर चिंता, क्योंकि घुसपैठिया चीप है और ज्यादा काम करता है, हार्ड वर्क, क्योंकि उसको सरवाइव करना है। हम चीप लेबर और ज्यादा हार्डवर्क के लोभ में उसको काम देते, अपने वालों को काम नहीं देते। ये नहीं करना, ये हम कर सकते हैं। वो करने से, और अभी बहुत सारा चल रहा है, SIR वगैरह हो रहा है, उसमें ऐसे लोग ध्यान में आ रहे हैं, और चलेगी बातें। लेकिन हम अगर ये करते हैं, डिटेक्ट एंड रिपोर्ट, डिटेक्ट एंड डिसोसिएट, ये करते हैं और सजग रहते जरा सुरक्षा वगैरह की दृष्टि से। यहाँ कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैदराबाद में, तो सावधान रहने से ये सब टल सकता है और प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो सकता है। Next is on Bharat and global affairs. Question is, Sri Swaranjit Sen, Major General N. Srinivas Rao, Sushma P. Why there is a push to rename India as Bharat when objections exist? Why are relations strained with neighbors, including Nepal, and how can this be corrected? What is Bharat's global role as a civilizational guide rooted in Dharma, and what responsibility do youth carry internationally? तो why was भारत renamed as India? उल्टा प्रश्न है ना। इंडिया हमारा नाम नहीं था ना, हमारा नाम भारत था। सिकंदर आया तब से इंडिया आया। सिकंदर के पहले हम भी अपने देश को भारत ही कहते थे, और प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन होता नहीं। गोपाल का मतलब काउहर्ड,
ऐसा नहीं करते हम। गोपाल गोपाल है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, स्वाहिली में भी, गोपाल इज गोपाल। सो व्हाई भारत वाज रीनेम्ड एज इंडिया, ये पूछना चाहिए, आप उल्टा पूछ रहे हैं। वी आर नॉट रीनेमिंग इंडिया एज भारत, वी आर कीपिंग दैट नेम which should not have been renamed constant. भारत भारत है, भारत इंडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत तो कहा है, तो भारत भी संवैधानिक है, तो क्या तकलीफ क्या है उसमें? Why are relations strained with neighbors? So neighborly attitudes, कभी उधर से गड़बड़, कभी इधर से गड़बड़, ऐसा हुआ है। लार्जली उधर से गड़बड़ ज्यादा है, क्योंकि ये नेबर्स और भारत ठीक रहे आपस में ना, तो दुनिया में स्वार्थी लोगों के दुकान बंद होंगे। इसलिए राइट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस डेज ये स्ट्रेन्स बने रहे, ये तनाव आते रहे, इसके मशीनेशंस चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, और इसलिए उधर से ज्यादा होता है। लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी होती है कभी कभी, तो अपने तरफ से गलतियां नहीं करना। ये तो धीरे धीरे ऐसा लगता है देख के कि भारत ने शुरू किया है, जो गलती भूतकाल में हुई नहीं करना और ठीक रहना, उनको अच्छा लगे ऐसा रहना, उनको मदद करना। लेकिन उधर जो मशीनेशंस चलते हैं वो अभी चल रहे हैं, तो ये होड़ चलेगी कुछ दिन, बाद में ट्रुथ विल प्रिवेल। हमारा जो बिहेवियर है उसके आधार पर जो गुड फीलिंग बनेगी, इट विल प्रिवेल। लेकिन ये तो स्टेट वाइज हो गया, शासन का हो गया। पीपल टू पीपल एफर्ट होना चाहिए। और संघ के स्वयंसेवक सोच रहे कि भारत के पड़ोसी देशों में, जो पहले भारतीय थे, तो देश तो अलग बन गए, कागज पर लकीर खींच गई, अलग गवर्नमेंट्स हो गए, लोग तो वही है, वो तो बदले नहीं। तो क्या लोगों का लोगों से संबंध आने वाले उपक्रम करके हम एक ऐसी फीलिंग बना सकते हैं पूरे इस रीजन में कि हम लोग एक बृहद भारत है, और इसलिए हमको आपस में मिलकर रहना चाहिए। भारत में सार्क का अधिवेशन होने वाला था, लेकिन ढांचा गिर गया, तो वो पोस्टपोन होकर ढाका में हो गया 6 महीने के बाद। और उस समय की बांग्लादेश की प्रेसिडेंट, वो अध्यक्ष थी, वो नीचे उतरने वाली थी, लंका के प्रेमदासा वो होने वाले थे। तो उनका मैंने भाषण सुना टेकिंग चार्ज सेरेमनी में, टीवी पर, भारत के टीवी पर प्रोजेक्ट हो रहा था। हम लोगों पर उस समय प्रतिबंध था, तो थोड़ी फुर्सत थी, एक दिन के लिए घर गया था, दोपहर सब लोग काम में चले गए, मैं खाली था, तो टीवी लगाया तो वो चल रहा था। तो प्रेमदासा कहते हैं कि हम सब देशों को आपस में साथ रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां हमको निगल रही है, बचने का एक ही तरीका है, संगठित रहो। आगे वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आज हम दुनिया के नक्शे पर अलग अलग देश दिखाई दे रहे, लेकिन हम तो मूल मुख्य भारत भूमि के ही अंग रहे हैं। ये बात अभी भी जहन में है, एंड दिस इज द रियलिटी विच विल प्रिवेल इन इट्स ओन टाइम। तो इसको जीवंत रखने के लिए ऐसा कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं क्या, हम सोच रहे हैं, और भी कुछ लोग करेंगे, देखते हैं। और ग्लोबल रोल एज ए सिविलाइजेशनल गाइड, तो डिटेल में बताइए मैंने, भारत की ड्यूटी क्या है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारे दुनिया से लोग आए और अपने अपने जीवन की शिक्षा भारतवर्ष के लोगों के जीवन को देखकर ले, ऐसा हमको बनना है। ये हमारा पूर्वजों का दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, तो हमको ये करना पड़ेगा। आज के दिन में इंडिविजुअल से लेकर तो नेशन तक एक रोल मॉडल देना है हमको, जिससे आज के दुनिया के सब कैंसर्स सक्सेसफुली एड्रेस होंगे। फिर दुनिया सोचेगी और हमारे बेसिक्स लेकर उनके अपने नेशनल इथॉस के अनुसार
उनका उनका मॉडल खड़े करेगी। ये हमारी कल्पना है। भारत बनेगा, भारत पर्यावरण की समस्याओं का उत्तर देगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का उत्तर देगा, विविधताओं को मैनेज करना, ड्यूअलिटी, इन सब में भारत अपना उदाहरण रखेगा। इंग्लैंड देखेगा, अमेरिका देखेगा, अफ्रीका देखेगा, ऑस्ट्रेलिया देखेगा, सब देखेंगे और ये बेसिक्स लेकर अपने अपने देश की इथॉस के अनुसार अपना अपना मॉडल खड़ा करेंगे और सब मिलकर यूनिवर्सल लाइफ को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये अपना रोल है, उसके लिए हमको तैयार होना। We come to the last chapter, other nation building and social development aspects. Question is Manohar Rao Bompalli, Swaranjit Sen, Dr. Akula Naresh Babu, Major General N. Srinivas Rao and Papi Reddy Garu. How can social sector encourage stronger youth commitment to nationalism and nation building? Why is Ayurveda not being promoted massively as India's foundational medical system? What should be the role of youth and women in today's societal transformation? What ethical foundations must be strengthened so integrity and accountability become social norms? We are retired bureaucrats. What does Sangh expect from us? What role do we envisage for us? Youth or women, they are the major players for future. हमारा डिविडेंड है ना 57% यूथ पॉपुलेशन, एंड इट इज ब्रिमिंग एंड फ्यूमिंग विथ पेट्रियोटिज्म। भारत को बड़ा करना चाहते हो, दे आर मोर ऑनेस्ट, उनको सेवा का अपील है, देशभक्ति का अपील है। तो बहुत इनोवेशंस वो कर रहे हैं, बहुत बातें करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। नई आइडियाज आती है तो कहीं पर उसको रिसीव करना, उसका परीक्षण करना और जो ठीक है उसको आगे बढ़ाना, इसका जो मैकेनिज्म तो है, लेकिन जो उत्साह से यंगर जनरेशन को ओल्डर जनरेशन ने करना चाहिए वो नहीं होता है, वो करने की जरूरत पड़ेगी। और महिलाओं का सशक्तिकरण और प्रबुद्धिकरण यानी प्रबोधन, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला एक फैमिली को तैयार करती है, वो अकेली नहीं ठीक होती। वो ठीक हो गई इस दृष्टि से तो पूरी फैमिली ठीक हो जाती है, एक जनरेशन बनती है। और इसलिए मैक्सिमम रोल इन दो कंपोनेंट्स का है, और ये लोग सशक्त बने, इनका प्रबोधन हो, इनके लिए फैसिलिटेशन हो, ये सारी बातें व्यवस्था को भी देखनी चाहिए और हम लोगों को समाज के नाते भी देखनी चाहिए। दूसरा, इनमें कमिटमेंट अगर आनी है स्ट्रॉन्गर, तो हम लोगों का उदाहरण उनके सामने अच्छा चाहिए। सिचुएशन तो मिक्स रहती है हमेशा, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन सिचुएशन में बरतने वाले व्यक्ति पक्के हैं। अगर किसी ऑफिस में ऊपर का साहब है, वो एकदम क्लीन है, वो खाता नहीं, खाने देता नहीं, तो नीचे तक सब सुधार आता है। से हम लोग जो महाजन है, in spite of all the situations, we have to remain very firm on our ethics. जैसा जवान पीढ़ी का हमको बिहेवियर चाहिए, वैसा बिहेवियर हर हालत में कष्ट करके भी, सहन करके भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो नए जनरेशन को नेचुरल अट्रैक्शन अच्छाई का है, लेकिन उनको ऑनेस्ट अपील नहीं मिलता, करने वाले नहीं दिखते, बोलने वाले बहुत मिलते। वो करने से उनका उत्साह बढ़ेगा और हमसे भी ज्यादा काम करके वो दिखाएंगे, ये पक्का है। तो वो एथिक्स क्या है? पहली बात है ऑनेस्टी। एवरीवेयर एट द रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्टर्बेंसेस इज लैक ऑफ ऑनेस्टी। तो प्रामाणिकता। दूसरी बात देशभक्ति। सब बातों से ऊपर देश है। जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, रिलीजन, अमुक तमुक तमुक, सबके ऊपर देश है। क्योंकि भारत रहेगा तो हिंदू रहेगा,
हिंदू रहेगा तो भारत रहेगा। हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। ये इतिहास है, ये वर्तमान है। और इसलिए हम हिंदू है सबको स्वीकार करते। इसका कारण भी क्या है? सुजल सुफल मलयज शीतल भारत में we were secure and we were prosperous and we had time. Therefore we didn't stop after searching outside. We searched for real happiness inside. Therefore we got that principle of existence of universal unity, oneness of existence. तो भारत माता ने हमको केवल अन्न जल पोषण नहीं दिया, संस्कार भी दिया है। और इसलिए भारत भक्ति ये सुप्रीम मूल्य है, सुप्रीम वैल्यू है। और ये अगर है और भारत को बड़ा करना है तो हमको अनुशासन स्वीकार करना पड़ेगा। सब लोग क्या कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। शिवाजी महाराज जैसा प्रत्येक ने बनना चाहिए मुझे छोड़कर, क्योंकि कष्ट है उसमें। तो ऑनेस्टी अगर है और ये देशभक्ति है तो अनुशासन अपने आप आता है। और समर्पण चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फॉर कमिंग 50 years लीव ऑल योर डेटीज, देयर इज ओनली वन डेटी, भारत माता। उसी के लिए जियो, उसके भाइयों के लिए जियो। उन्होंने 50 साल कहा था, लेकिन हमको और 50 साल कम से कम करना पड़ेगा, और बाद में भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक करते हैं तब तक भारत बड़ा होता है, और भारत बड़ा होता है हम सब बड़े होते हैं, मटेरियली स्पिरिचुअली ऑल्सो। इसको समझ के हम लोगों को अपना उदाहरण रखना चाहिए, समाज को धीरे धीरे समझाना चाहिए, तो ये सारी बातें होगी। और ये होता है तब आयुर्वेदा मासिवली प्रमोट करने वाला कौन है? सरकार है क्या? किसी सरकार ने आयुर्वेद को प्रमोट किया था क्या पहले? किसी राजा ने प्रमोट किया था? ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, और सब लोग आयुर्वेद लेते थे। तो अगर हमने आयुर्वेद को प्रिफर करना शुरू किया, उसमें थोड़ा मेहनत है, क्योंकि केवल दवाई नहीं है आयुर्वेद, रहने खाने पीने के नियम भी है, आहार विहार, स्वास्थ्य वृत्त नाम का एक प्रकरण है। तो अपने को जीवन शैली से शुरू करना पड़ेगा। वो अगर हम करते हैं तो, और थोड़ा फिर सोचकर प्रशासन शासन उसके लिए प्रयास करता है, जैसे आयुष मंत्रालय कर रहा है, वैसा अगर करते हैं तो आयुर्वेद दुनिया में सुप्रीम हो जाएगा। समाज में से ऐसे कुछ इनिशिएटिव शुरू हो गए हैं। अभी परसों में, कल ही विजयवाड़ा में था, तो जिनके यहाँ था उनकी कंपनी है, वो आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज करके एक्सपोर्ट वर्दी बनाती है। सैनिक बातें वो कर रहे हैं। मूल हर्ब्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, कौन सी ऋतु में लेना वगैरह सारा ऑब्जर्व करके, उसके परिणाम मेजर करके, उसके आधार पर उनका एक्सपोर्ट चल रहा है। तो ऐसे प्रयास चल रहे हैं बहुत सारे। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन अपनाना शुरू कर दिया, तो सारी दुनिया में आयुर्वेद जाने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, यहां रुकते हैं, लेकिन अब कार्यक्रम एजेंडा समाप्त हो गया अपना। लेकिन एजेंडा समाप्त होने के बाद भी एक लाइन लगानी पड़ती है ना। पूरा एक ऐसे लिखा, पूरा विषय हो गया, सब अच्छे से समझाया, लेकिन नीचे एक लाइन लगानी पड़ती है। वैसे एक लाइन लगाने का काम मेरा है, वो मैं करता हूं। अभी तक आपने सुना, संघ के विचार जाने, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुनकर मत समझिए, देखकर समझिए। तो संघ के अनेक कार्यक्रम होते हैं, संघ के कार्यकर्ता है, उनके घरों में आना जाना आप कर सकते हैं। उन कार्यक्रमों में रहकर यू कैन फील संघ। इतना भाषण देने के बाद भी संघ समझ में आना है तो अनुभव चाहिए। चीनी कितनी मीठी है, उस पर 2 घंटा भाषण हर साइंटिस्ट दे सकता है, लेकिन आधा चम्मच खा लो तो पता चलता है। वैसे आप अनुभव लीजिए, और आपका मत क्या बनाना वो आपके
आप ज्वाइन हो सकते हैं अथवा आप न्यूट्रल रह सकते हैं अथवा अपोज भी कर सकते हैं, हमको उसकी परवाह नहीं। जो भी आप करेंगे वो परसेप्शन के आधार पर मत करना, प्रोपेगेंडा के आधार पर मत करना, आप फैक्चुअल एक्सपीरियंस के आधार पर अपना ओपिनियन बनाइए। क्या बनाइए ये आपका अधिकार है। जैसा मैंने कहा कि आप इस प्रकार फैक्ट्स के आधार पर अपोज भी करेंगे तो दैट इज समथिंग एजुकेटिव फॉर अस, हमारे लिए इंप्रूवमेंट के लिए साधन हो जाएगा। लेकिन करना है क्यों? क्योंकि संघ का काम नहीं है, हम सबका काम है। जैसा मैंने कहा पूरा समाज करेगा तो ये देश बड़ा बनेगा, नहीं तो बार बार उस स्लेवरी एंड इंडिपेंडेंस, स्लेवरी ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब साइकिल में हमको जाना पड़ेगा। आजकल युद्ध के भी प्रकार बन गए, अलग अलग प्रकार हो गए। अब सीधा कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्क्वेस्ट ऐसा नहीं होता है, अभी सूक्ष्म आक्रमण चलता है। अभी ट्रम्प साहब डंडा लेके बैठे, आप ये करो, वेनेजुएला को कह दिया हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना आपका काम है, आप नहीं करेंगे तो हम फोर्स का उपयोग करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लेवरी। अमेरिकन माइट के आगे वेनेजुएला अगर झुक गया तो इट विल बी ए नॉमिनल इंडिपेंडेंट नेशन। ऐसे भी बहुत प्रकार आए। दुनिया स्वयं स्टम्बल हो रही, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और रास्ता देना काम है, ये काम भारत का है और भारत ही कर सकता है। तो भारत का खड़ा होना अनिवार्य है, इसलिए हम सबको काम करना। मैं जानता हूं संघ के अलावा और लोग भी हैं काम करने वाले, मैं संघ का हूं इसलिए आपको अपील करता हूं संघ को ज्वाइन कीजिए। संघ यानी संघ की शाखा वगैरह वगैरह। अब वो प्रोसेस अब आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या पता नहीं, और वो प्रोसेस में से नहीं गए फिर भी बहुत अच्छे हैं, स्वयंसेवक जैसे ऐसे लोग हैं। विनोबाजी भावे गुरुजी जब मिलने गए उनको, द्वितीय सरसंघ चालक, तो उन्होंने उनको कहा कि गुरुजी मैं संघ का असभ्य सभ्य हूं। असभ्य यानी अनसिविलाइज नहीं, असभ्य यानी जो सभा में नहीं आता है वो असभ्य है। हाँ, नॉन मेंबर। तो मैं आपके कार्यक्रमों में नहीं आता हूं, कुछ नहीं, मैं नहीं हूं स्वयंसेवक, लेकिन मेरा जीवन स्वयंसेवक जैसा है। तो आप सीधा संघ के कार्यक्रम में आइए, संघ की शाखा ज्वाइन कीजिए, संघ के प्रोसेस में रहिए, अथवा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम स्वयंसेवक कर रहे हैं विविध संगठनों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, अनेक इंस्टीट्यूशंस अच्छी चल, वहां आपके कर्तृत्व की आवश्यकता है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं संघ कार्यकर्ताओं से कंसल्ट करके। अथवा आप कोई अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें संघ के स्वयंसेवक की आपको मदद हो सकती है, रिलेशन रखिए। नहीं आप अपना काम खुद करना चाहते, अच्छा कीजिए, हम बीच बीच में आएंगे, नमस्ते, चाय पियेंगे, कभी आपको बुलाएंगे चाय पिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, संपर्क रखेंगे, आप जो अच्छा कर रहे हो उसके लिए शाबाश कहेंगे। और कुछ नहीं तो देश के हित के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, टिकट वगैरह नहीं मांगना, निस्वार्थ बुद्धि से करना, तन मन धन पूर्वक जो कर रहे वो एक्सलेंट कर रहे, उत्कृष्ट, तो हम मानते हैं कि आप भी संघ के असभ्य सभ्य है। आप किसी भी कैटेगरी में आपके मर्जी के अनुसार बैठ सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी एक्टिव फॉर इमेंसिपेशन ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री, बिकॉज दिस इज द ओनली होप फॉर द वर्ल्ड एंड दिस इज द ओनली होप फॉर अस। हम कहां जाएंगे? अमेरिका भागने से उपाय नहीं है, कहीं भी भाग जाइए, भागते रहना पड़ेगा। भारत को ठीक नहीं बनाएंगे, हमको जगह नहीं है दोस्तों। ये बहुत खराब अनुभव है, उसको लेने की झंझट में मत पड़िए, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ये आजमाने की झंझट में मत पड़िए। बहुत लोग आजमा रहे और भुगत रहे, और इसलिए भारत के हित में सक्रिय होने का एक माध्यम के नाते संघ आपको आमंत्रित करता है आने के लिए, अर्थात ब्लाइंडली मत आइए। जो मैंने कहा इतने देर तक वो संघ में है कि नहीं, यू कैन कम एंड सी फॉर योरसेल्फ।
और देखने पर लगा आपको हाँ बिल्कुल है, तब भी ये 4 ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शांत मत बैठिए, केवल मैं, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं रही है। पूरी दुनिया का, देश का एक समग्र विचार करके इस पथ पर सबको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। संघ के शताब्दी में आपको बताने की एक बात ये भी है, एज ए कंक्लूजन मैंने आपके सामने रख दी है। इतनी देर से आपने सुन लिया, आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। On this occasion, there is a small book release we need to do. About the book, Sri Mangalampalli Srihariji will explain briefly. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సాధకు నమస్కార్. ఇది సామాజిక సమరసత వేదిక సంఘ యొక్క ఒక వివిధ క్షేత్రంలో పనిచేస్తుంది. గతివిధిలో సామాజిక సమరసత వేదిక సోషల్ హార్మనీ ఫోరం అఖిల భారత నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్తో కలిసి అక్టోబర్ 26 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు ఈ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్, సంచార జాతులు అంటాం, వాళ్ళ మీద ఒక సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. సుమారుగా 1450 మంది 1450 ఫ్యామిలీస్ని రిమోట్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి 50 మందికి పైగా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్, పిహెచ్డి స్కాలర్స్, ఐటీ ఎంప్లాయీస్, ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా కలిసి తెలంగాణ మొత్తం 29 జిల్లాల్లో సర్వే చేయడం జరిగింది. సుమారుగా 32 కులాలని ఐడెంటిఫై చేశారు. వాళ్ళు చాలామందికి, సగం మందికి పైగా వాళ్ళు ఇప్పటికూ సంచారంలో ఉంటారు. రాణా ప్రతాప్, శివాజీ కాలం నుంచి కూడా వాళ్ళు సేనాధిపతులుగా గూఢచర్యానికి సంబంధించినటువంటి విభాగాల్లో కూడా పనిచేసి తర్వాత సామాజికమైన వచ్చినటువంటి వివిధ కారణాల రీత్యా వాళ్ళు సంచార జాతులుగా స్థిరపడ్డారు. హిందూ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వాళ్ళు ఇప్పటికీ సమాజానికి చేరుస్తున్నారు. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఒక సమగ్రంగా ఒక సర్వేగా ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని గవర్నర్ పరమ పూజనీయ సరస్వతి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఈనాటి సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి పూర్వ ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు జాతీయ అంతర్గత భద్రతలో పాలు పంచుకొని పదవి విరమణ చేసినటువంటి సైన్యాధికారులు మరియు పదవి విరమణ చేసినటువంటి న్యాయ అధికారులు, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నటువంటి న్యాయ అధికారులు అందరూ కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నందుకు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క చక్కటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ సభా మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనకు ఒక చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యాజమాన్యాన్ని కూడా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ తరఫున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని భద్రతను కల్పించినటువంటి పోలీస్ అధికారులకు కూడా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ తరఫున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం.